आज श्री पीयूष गोयल जी, माननीय रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के कर कमलों द्वारा पश्चिम बंगाल की जनता के लिए रेल यातायात में सुगमता, यात्री सुख सुविधाओं में वृद्धि एवं यात्री सुरक्षा में बढ़ोतरी से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण संपन्न होने जा रहा है। माननीय रेल मंत्री जी आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे है सांतरागाछी पर 12 मीटर चौड़ा द्वितीय ऊपरी पैदल पुल, संक्राइल में फ्रेट टर्मिनल और हावड़ा में विवेकानंद मेडिटेशन सेंटर। साथ ही साथ माननीय रेल मंत्री जी आज जिन परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे उनमें सम्मिलित है सियालदह स्टेशन में एग्जीक्यूटिव लाउंज, 2 एस्केलेटर और 2 लिफ्ट, कोलकाता स्टेशन पर प्रीमियम लाउंज, बर्धमान स्टेशन पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली, जमातपुर बहारन स्टेशन एवं नीमो स्टेशन में ऊपरी पैदल पुल, बालागढ़ स्टेशन और गुप्तीपाड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म शेड का विस्तार, बर्धमान स्टेशन, तारकेश्वर स्टेशन एवं नवद्वीप धाम स्टेशन पर एस्केलेटर्स। यह समस्त परियोजनाएं पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। ये सभी परियोजनाएं बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की दिशा में एक अथक प्रयास है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों को एक बार पुनः सादर नमन करते हुए मैं माननीय महाप्रबंधक पूर्व रेलवे एवं कोलकाता मेट्रो श्री मनोज जोशी जी से स्वागत संबोधन हेतु आग्रह करता हूँ। माननीय श्री मनोज जोशी जी। थैंक यू। Honorable Minister of Railways, Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution, Shri Piyush Goyal ji. Honorable Minister in Charge, Cooperation Department, Government of West Bengal, Shri Arup Roy ji. Honorable MP Lok Sabha, Shri Sunil Kumar Mondal ji. Honorable MP Lok Sabha, Shri Asit Kumar Mal ji. Honorable MP Lok Sabha Shri S.S. Ahluwalia ji, Honorable MP Lok Sabha Srimati Locket Chatterjee ji, Honorable MP Lok Sabha Srimati Aparupa Poddar ji, Honorable MP Rajya Sabha Shri Pradeep Bhattacharya ji, Honorable MLA Shri Sheikh Shahnawaz ji, Honorable MLA Shri Rajpal Singh ji, Honorable MLA Shrimati Mala Saha ji, Honorable MLA Shri Seetal Kumar Sardar ji, respected Chairman and CEO Railway Board, all the other dignitaries who are connected through video conference, my friends from electronic and print media, my colleagues from railways. On this occasion, I extend a very hearty welcome to you all for inauguration dedication of various projects in West Bengal. Under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister and Honorable Railway Minister, a lot of emphasis has been placed on improvement in railway infrastructure and passenger amenities. Today, Honorable Minister for Railways shall be dedicating to the nation some of these projects related to freight terminal, improvement in safety and security like integrated security system, and passenger amenities like lifts, escalators, extension of platform shed, foot over bridges, and premium lounges at various places in the state of West Bengal and meditation center at Howrah. I am sure the commissioning of these projects will go a long way in further upgrading the services and enhancing passenger satisfaction. I once again welcome Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Railways, and all the other dignitaries to this function. Thank you. धन्यवाद श्री मनोज जोशी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय रेल मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन से भारतीय रेल एक तरफ सफलता के नए आयामों को स्पर्श कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के सतत विकास में योगदान भी दे रही है। आज की परियोजनाओं की झलकियां एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है। Trailblazing into the future, the Indian Railway has never ceased to improve the amenities and services provided.
In the state of West Bengal this year, budget provision has been made of rupees 6,636 crore, which is 52% higher against the average budget allotment in the years 2009 to 2014. हम रेल में सामान्य से सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए रेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं. Honorable Prime Minister's stress on improving logistics and upgrading freight facilities, and Honorable Minister of Railways' vision of National Rail Plan to improve rail infrastructure to cater to the growing demand up to year 2030 has led the development of rail infrastructure in West Bengal. Southeastern Railway has constructed the second footover bridge at Santragachi station and a freight terminal in Sankrail under Kharagpur division. The second footover bridge, 12 meters wide, is constructed at Santragachi station at a cost of rupees 20 crore, which will significantly improve mobility and crowd dispersal along with improved safety of the passengers. The first phase of Sankrail freight terminal at a cost of rupees 139 crore is completed. It would serve the industrial belt of Kolkata through the national highway and by speeding up the turnaround of rakes. The Eastern Railway has successfully completed several significant projects. A luxurious executive lounge providing many amenities and a resting space to its passengers has been built at a cost of rupees 1.5 crore in Sialda station. 2 escalators for easy access for senior citizens and Divyangjan have been constructed at a cost of rupees 1.19 crore in Sialda station. 2 lifts for easy access to senior citizens and Divyangjan at a cost of rupees 75 lakhs in Sialda station. A premium lounge with various amenities has been made for the passengers at a cost of rupees 85 lakhs. At Howrah, Vivekananda Meditation Center has been made for both railway employees and passengers to relieve stress through meditation at a cost of rupees 63.93 lakhs. In order to augment security of passengers and railway property, an integrated security system at a cost of rupees 2.3 crore has been commissioned at Bardhaman station. It will facilitate better surveillance through CCTV control room and enable the Railway Protection Force to ensure law and order and prevent crime against women and child trafficking, etc. Foot overbridges at Jamatpur, Baran in Bandel Katwa Azimganj section and at Nemo in Howrah Bardhaman mainline section have been constructed at a cost of rupees 2.12 crore. Foot overbridges will facilitate commuters to change platforms safely and with ease at both the stations. Platform sheds have been extended at Bolagar at a cost of rupees 14 lakhs and at Guptipara at a cost of rupees 28 lakhs. To facilitate commuters visiting Bardhaman, Tarakweshwar and Nabodvip Dham stations, escalators have been installed at these stations, each at a cost of rupees 91 lakhs. This facility would be immensely beneficial for Divyangjan and senior citizens. All these projects are being dedicated to the nation today by Honorable Minister of Railways, Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution, Government of India. अब मैं माननीय CRB एंड CEO भारतीय रेल श्री सुनील शर्मा जी से संबोधन हेतु अनुग्रह करूंगा. माननीय श्री सुनील शर्मा जी. आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, रेल मंत्री, आज यहाँ उपस्थित हमारे सांसदगण,
MLAs और मेरे सारे रेलवे के साथी, आज हम लोग यहाँ पे जो हमने पैसेंजर एमिनिटीज के लिए जो कार्य किया है, लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए जो कार्य किया है रेलवेज ने, उसके प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और इनॉग्रेशन है। ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों ने मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, FOB, ROB, एग्जीक्यूटिव लाउंजेस, फ्रेट टर्मिनल्स, एक्सटेंसिव रोड ओवर ब्रिजेस, कवर्ड ओवर शेड, इस तरह के बहुत सारे कार्य किए हैं। कई सारे इसमें नोटेबल चीजें भी रही हैं, जैसे सियालदा की एग्जीक्यूटिव लाउंज, जो हमारे प्रीमियम पैसेंजर्स के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है और उसकी काफी तारीफ भी लोगों ने की है। कलकत्ता की लाउंज, इसके अलावा जो बड़े बड़े हमारे FOB हैं, संकरेल का फ्रेट टर्मिनल है। तो हम लोगों ने कोशिश ये पूरी जारी रखी कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हमको मिलते रहे और जहां जहां पे हमें लैंड के इश्यूज या बाकी दिक्कतें नहीं रही, वो प्रोजेक्ट्स को हम आगे बढ़ाएं और उन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो के थे, वो हम लोगों ने अभी उस पर कार्य करते हुए एक्स्ट्रा मेहनत की उसके ऊपर, और कई सारे प्रोजेक्ट्स मेट्रो के भी हम लोगों ने कंप्लीट किए जो कई सालों से रुके हुए थे। वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से हम लोगों ने जो बजट के एलोकेशंस किए, उनमें कई गुना विस्तार है पिछले सालों के तुलना में। 2009 से 2014 के बीच के तुलना में 14 से 19 के बीच में बहुत हमने उसमें विस्तार किया है, बहुत ज्यादा कैपेक्स दिया है, ये मानते हुए कि हम जो फैसिलिटीज अपने लोगों को दे सकें उससे उसमें इजाफा हो। बहुत सारी ट्रेन्स भी हम लोगों ने परिचालित की हैं। कलकत्ता सबर्बन की अब करीब करीब 90% से ज्यादा ट्रेनें हमारी चल रही हैं। इसके अलावा मेल एक्सप्रेस करीब करीब हम सारी ट्रेन्स रिस्टोर कर चुके हैं और पैसेंजर ट्रेन्स को भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके हम उसमें लगातार इजाफा कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। जहां तक फ्रेट का संबंध है, वहां पे हम लोगों ने कोयले में काफी लदान में इंप्रूवमेंट किया है, दोनों रेलवेज में, साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न में, जो बंगाल के हमारे पावर हाउसेज हैं उनको फीड करने में, और जो एसेंशियल कमोडिटी जो हमारी नॉर्दर्न साइड से आती हैं, जैसे कि व्हीट है और बाकी फूड ग्रेन्स हैं, उनके कार्यान्वयन में भी, उनके आवागमन में भी हमने बहुत इंप्रूवमेंट्स किए हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रेलवे आगे भी बढ़ेगा और वेस्ट बंगाल में और हम सुविधाएं अपने कंज्यूमर्स को, अपने पैसेंजर्स को, अपने ग्राहकों को दे सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री सुनील शर्मा जी। हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से सादर अनुरोध है कि वो अपने कर कमलों द्वारा रिमोट बटन दबाकर इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ एवं राष्ट्र को लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें।
अब मैं माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से करवद निवेदन करूंगा कि वो आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय रेल मंत्री जी। धन्यवाद। श्री अरूप रॉय जी, पश्चिम बंगाल के कोऑपरेटिव विभाग के मंत्री, श्री सुनील कुमार मोंडल जी, सांसद, श्री एस आलूवालिया जी, सांसद, श्रीमती लॉकेट चैटर्जी, सांसद, श्री असित माल जी, सांसद, श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी, सांसद, श्रीमती अपूर्वा पोद्दार जी, सांसद, श्री रचिपाल सिंह जी, विधायक, श्री सोहनवास जी, विधायक, श्री मनोज जोशी जी, जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे, श्री अनित दुलाल जी, एडिशनल जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे, जो सभी हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं, मेरे कलीग माननीय श्री शर्मा जी, चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधु जो अलग अलग जगह से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और पश्चिम बंगाल के हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं संवेदना देना चाहूंगा जो निमटिटा स्टेशन पे बहुत ही दुखद घटना परसों हुई है, जिसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने बॉम्ब ब्लास्ट करके स्टेशन के ऊपर पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री जी को भी घायल किया। एक व्यक्ति ने बलिदान दिया और कई हमारे मित्र घायल हैं। वो सब जल्दी से ठीक हो, जल्दी से स्वस्थ हो, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। रेलवे वास्तव में जनता का धरोहर है, जनता की खुद की मलकियत है, आप सबकी है रेलवे। इस प्रकार की घटनाएं रेलवे स्टेशन पर करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस और जो शायद एक सीआईडी को सौंपा गया है इसका छानबीन करने का काम, ये जल्द से जल्द इसकी गहराई में जाके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ेगी, और जो एक वायलेंस का एटमॉस्फेयर है उसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जिससे आगे चल के पश्चिम बंगाल भी शांति में लोग रह सके और प्रदेश उन्नति कर सके। भारतीय रेल का सपना है कि देश भर में व्यवस्थाएं आधुनिक हो, सुरक्षा बढ़े, रेल की सेवाएं जनता को भी बड़े पैमाने पे उपलब्ध हो, जो मालगाड़ी की सेवाएं हैं वो छोटे बड़े उद्योग को, एमएसएमई को, व्यापारियों को सेवा दे पाए, और उसी के तहत हमारी इच्छा है कि तेज गति से अभी के व्यवस्थाओं में भी सुधार हो,
और नई व्यवस्थाएं भी विकसित हो पश्चिम बंगाल में। आज कई सारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया, विशेषकर जो फ्रेट टर्मिनल सनक्रेल में लगा है, इसमें लगभग 8 लाइनें हैं, पूरे 8 लाइनें फुल लेंथ की, जो बड़े रूप में जो औद्योगिक क्षेत्र है सनक्रेल के आसपास और कोलकाता से कोना एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है, वहां से तेज गति से सामान जा सके, फ्रेट ट्रेन जा सके और नई पैसेंजर ट्रेन्स भी उस रास्ते पे चल सके, उसकी सुविधा देगा। जितना फ्रेट की सुविधाएं टर्मिनल में मूव होती है, उतना हमारे पास पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी या पाथवे मिल जाता है। इसी में हम आगे चल के एक नया वेयरहाउस का भी फैसिलिटी अगले 2 वर्ष में तैयार करने के लिए संकल्पित है। आज सियालदा, और कहा जाता है कि सियालदा का पूरा शहर एक पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द डेवलप हुआ है। वैसे ही कई वर्षों में सियालदा भी एक प्रकार से बहुत ही बिजी स्टेशन, बहुत ज्यादा ट्रेनें उधर आती जाती हैं, कई सारी लंबी डिस्टेंस की जो गाड़ियां हैं वो वहां पे टर्मिनेट होती हैं। तो सियालदा स्टेशन एक अपने आप पे बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन बन गया है भारतीय रेल में। एक प्रकार से जैसे जैसे रेलवे का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे सियालदा स्टेशन का भी लगातार विस्तार हो रहा है। वहां नई लिफ्ट लगी है, नए एस्केलेटर लगे हैं और अच्छा यात्रियों को सुविधाएं मिले और उनकी यात्रा सुगम हो, इसके लिए कई सारे काम सियालदा में भी किए गए। संतरगाछी में बहुत सारे लोग ट्रैक्स को क्रॉस करते हैं, काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म है, 6 प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे। तो ये महसूस किया गया कि एक नया फुट ओवरब्रिज, और अभी अभी हम टीवी पे फिल्म में देख रहे थे, बड़ा ही स्टर्डी हैवी ड्यूटी, मुझे बताया गया 12 मीटर चौड़ा ये फुट ओवरब्रिज यहाँ पे लगाया गया है। 6 प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करता है, क्रॉस करता है। मुझे विश्वास है इससे जो यात्री हैं उनको सुविधा मिलेगी कि वो जल्दी से अपनी यात्रा या तो प्रारंभ करने के लिए जाएं या खत्म करके अपने घर के लिए निकले, तो उनको उसकी सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से एक नया वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूटिव लाउंज सियालदा में जो बनाया गया है और एक प्रीमियम लाउंज जो कोलकाता में बनाया गया है, ये एक प्रकार से भारतीय रेल का संकल्प जो है कि यात्रियों को स्टेशन पे भी बहुत बढ़िया सुविधाओं से की उपलब्धि रहनी चाहिए। और मुझे आज बताते हुए खुशी होती है कि देश के 8,500 स्टेशन आज एकदम साफ सुथरे आपको मिलेंगे। हर स्टेशन पे सफाई के नए आयाम छुए गए हैं। हर स्टेशन मास्टर को जिम्मेदारी दी गई है कि स्टेशन एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए, आसपास के ट्रैक्स भी साफ सुथरे रहने चाहिए, टॉयलेट, शौचालय खास तौर पे साफ सुथरा रहना चाहिए। और जो अलग अलग प्रकार से हमको फीडबैक आ रहा है, और उसका सबसे अच्छा फीडबैक तो ये मिलता है कि जो कस्टमर कंप्लेंट आया करती थी हमारी कस्टमर हेल्पलाइन पे, वो आज के दिन सफाई की बात की कोई कंप्लेंट नहीं लाते। आज के दिन कोई ट्रेन में पानी खत्म हो गया इस टाइप की कंप्लेंट नहीं आती, क्योंकि हमने सभी ट्रेन्स में जो पाइप से पानी भरा जाता था उसको भी बड़ा करके टैंक पूरा भर जाए और पूरे रास्ते में ट्रेन में पानी की कमी ना हो, खासतौर पे गर्मी के दिनों में, उसको सुनिश्चित किया। जो रेलगाड़ियां पहले हाथ से साफ की जाती थी, और आप सब जानते हैं कि लंबा सफर करने के बाद ब्रश से या हाथ से अगर कोई या एक पाइप
होस पाइप से रेलगाड़ी को साफ करने की कोशिश करें तो वास्तव में बहुत अच्छी सफाई हो नहीं पाती है, मट्टी जम जाती है। अब ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट्स देश भर में लग रहे हैं, काफी तो लग चुके हैं और कई सारे आजकल अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। इन सब से कोशिश है कि रेलगाड़ी जब सफाई के लिए जाती है मेंटेनेंस यार्ड में तो एकदम बढ़िया उसकी मट्टी वगैरह निकाल के बहुत अच्छी तरीके से साफ होके आए। विद्युतीकरण का काम बड़े पैमाने में देश में चल रहा है। कल ही मेरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल स्पेशल एनवॉय है क्लाइमेट, खासतौर पे प्रदूषण के विषय में उनको जिम्मेदारी दी गई है अमेरिका में, उनसे जब बात हो रही थी और मैंने उनको बताया कि भारतीय रेल विश्व की पहली इतनी बड़ी रेल होगी, लगभग 70,000 किलोमीटर ट्रैक रूट किलोमीटर और 1.25 लाख ट्रैक किलोमीटर, ये विश्व में इतनी बड़ी रेलवे पहली बार 100% विद्युतीकरण हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। और उससे प्रदूषण कितना कम होगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। डीजल लोकोमोटिव तो बनाना ही बंद कर दिया है भारतीय रेल। अब हम सभी लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक की बना रहे हैं और अगले 2-3 वर्षों में जैसे जैसे और लाइनें पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाई हो जाएंगी तो हम डीजल ट्रेन चलाना पूरी तरीके से बंद करेंगे और भारत की जनता को एक बहुत बड़े प्रदूषण से बचाने का काम करेंगे। अगली चरण में 2030 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आदेश है कि हमने ये जो बिजली इस्तेमाल होती है रेलवे में, इसको भी नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पाद करना है। यानी जो बिजली लगेगी इस इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम में वो भी पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी। तो विश्व में पहली बार एक इतनी बड़ी यूटिलिटी, विश्व की पहली रेलवे होगी भारतीय रेल जो नेट जीरो रेलवे होगी, यानी कोई प्रदूषण नहीं पैदा करेगी, ना ट्रेन चलाने में और ना ही जो बिजली हम घर इस्तेमाल करते हैं उसके उत्पाद में। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि अमेरिकन एनवॉय एकदम आश्चर्यचकित रह गए और फिर मैंने उनको कहा कि भारत के इंजीनियर्स और हमारे भारत की रेल सेवाएं और हमारे भारत के युवा युवती जो नौजवान इस काम में लगे हैं, अगर आप हमें अनुमति दें तो हम अमेरिका में भी आके यही काम अमेरिकन रेलवे में विद्युतीकरण करने का हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। जिस भारत को एक जमाने में लोग सोचते थे कि बस विदेश से ही टेक्नोलॉजी आएगी, विदेश से ही पैसा आएगा, विदेश से ही नई सोच आएगी, इनोवेशन आएगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत अपने आप नई टेक्नोलॉजीज का निर्माण कर रहा है और आज भारत की टेक्नोलॉजीज पूरे विश्व की सेवा कर रही है। इसका मुझे लगता है हम सबको बहुत गर्व है। सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में, लगभग अभी तक जो मेट्रोज वगैरह में सिग्नलिंग चल रही है वो विदेश से आया करती थी। भारतीय रेल में भी हम जो मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम लगाना चाह रहे थे, शुरुआत में विचार था कि हमें विदेश से लाना पड़ेगा, पर मेरी एक रिव्यू मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब चल रही थी आज से 3 साल पहले, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्यों ना हम भारत में अपने खुद का सिग्नलिंग सिस्टम निर्माण करें। आखिर इतने हमारे में क्षमता है, हमारे नौजवानों में इतनी क्षमता है, हमारे इंजीनियर्स में इतना टैलेंट है, भारत में अपना सिग्नलिंग सिस्टम निर्माण करना चाहिए। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि बहुत तेज गति से 3 कंपनियां इस काम में लगी हैं।
इस काम में जुटी हुई है। हमारी जो RDSO है, रेलवे की डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस काम में उनके साथ लगी हुई है। शायद उसमें से एक कंपनी पश्चिम बंगाल की भी है, मुझे लगता है। नहीं, तीनों अलग अलग जगह से। मैं चाहूंगा पश्चिम बंगाल की भी कोई कंपनी इसमें पहल करे और एक डोमेस्टिक लोकली डेवलप सिग्नलिंग सिस्टम आगे चल के भारत में आए, जो हम भारत में ही रेलवे का सेवा न दें, पूरे विश्व में वो हम बेच सकें, उससे हम और अपनी अर्थव्यवस्था को बल दे सकें। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और तेज गति से औद्योगिक क्षेत्र में, सर्विसेज सेक्टर में, टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ते, उसके लिए हम सब ने प्रयत्न करना है। जितना जल्दी हमें पश्चिम बंगाल में जमीन मिल सकेगी, उतनी जल्दी हम पश्चिम बंगाल के प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करने में सफल होंगे। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय रेल को इतना बड़ा कैपेक्स का बजट दिया है। इस साल 2,15,000 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट भारतीय रेलवे को मिला है, जो आज से 5, 6, 7 साल पहले जब मोदी जी की सरकार बनी, उसके पहले कहा 40-45 हजार करोड़ सालाना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था, उसको मोदी जी ने बढ़ा के 2,15,000 करोड़ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर दिए। एक रिकॉर्ड है। मुझे याद है पहले कभी कोई रेलवे के समक्ष प्रस्ताव आता था तो कहा जाता था पैसे नहीं। आज उल्टी स्थिति है, हमारे पास पैसा पर्याप्त है। हम चाहते हैं कि जो 1974 में 1974 में पश्चिम बंगाल में रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसको आज 47 साल बाद भी हम खत्म नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमें जमीन नहीं मिल रही है। ऐसे सब प्रोजेक्ट्स में अगर हमें जल्द से जल्द जमीन मिल जाए पश्चिम बंगाल से, तो हम जल्द से जल्द इन सब प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सके, खत्म कर सके, जिससे ये जनता की सेवा में आए, जनता को इसका लाभ मिले और आगे चल के पश्चिम बंगाल की रेल सुविधाओं में और तेज गति से विस्तार हो और अच्छी तरीके से रेलवे आप सबकी सेवा कर सके। मैं समझता हूं एक मौका है हम सब के लिए कि हम सब ये संकल्प लें कि आगे चल के जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारा उमंग है, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हम सब अपने अपने प्रयासों से हाथ बटाएं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, इंस्पिरेशन फॉलोज एस्पिरेशन। मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल की जनता में आज वो एस्पिरेशन है, एक समृद्ध पश्चिम बंगाल देखने की। पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि औद्योगिक विकास हो पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि तेज गति से आधारभूत सुविधाएं सुधरे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, स्टेशंस का डेवलपमेंट हो, रोड्स और हाईवेज में विस्तार हो, नई लाइनें लगे, फ्रेट के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स लगे। इन सब काम के लिए मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल में इंस्पिरेशन तो बहुत है। उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए अब हम सब ने संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। माँ दुर्गा हम सबको आशीर्वाद दे कि हम सब इस उज्जवल पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए और मेहनत करें और सेवा करें पश्चिम बंगाल की। और मुझे विश्वास है आगे आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल एक नया सूरज उभरते हुए देखेगा, एक नया सवेरा पश्चिम बंगाल में आएगा
जिसमें पश्चिम बंगाल भी बाकी प्रदेशों की तरह तेज गति से प्रगति करेगा, तेज गति से विकास होगा पश्चिम बंगाल का। पुनः एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेल मंत्री महोदय। भारतीय रेल परिवार आपके दिखाए मार्गदर्शन पर चलने के लिए कटिबद्ध है और भारतीय रेल को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। अब मैं निवेदन करूंगा श्री अनिल दुलत, अपर महाप्रबंधक पूर्व रेलवे, कि वो आभार संबोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। On this memorable day of inaugurations and dedication of infrastructure and public facility works in West Bengal on Eastern and Southeastern Railways, it is my privilege to thank Honorable Minister of Railways, Shri Piyush Goyal ji. Sir, your vision, astute leadership, guidance and hands-on mentoring of the railways have gone a long way in speeding up the progress with the resolve to make railways as a catalyst for Bharat Atmanirbhar. I would like to thank Shri Arup Roy ji, Minister from West Bengal, honorable members of the Parliament, members of Legislative Assembly, Chairman and CEO of the Railway Board, other Railway Board members, and other distinguished guests from the state for their august presence, which has motivated us. I would also like to thank the press and electronic media for being a part of this memorable day. On behalf of Eastern Railways and Southeastern Railways, I extend my gratitude and thanks to all who have graced this occasion. Thank you, sir.